सेम चैप्टर रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू डू क्रेब्स साइकिल. क्या करेंगे हम लोग? Respiration chapter we are doing with, and we are going to do the second part, that is first part we did, I think glycolysis, and then we are going to do it now, Krebs cycle. Now what is the Krebs cycle? It is the second step of aerobic respiration. What is the Krebs cycle? It is the second step of aerobic respiration. It is the second step of aerobic respiration. It is the second step of aerobic respiration. It takes place in the matrix of mitochondria. क्या होता है? It takes place. कहाँ होता है? Takes place in the matrix of mitochondria. In the mitochondria there are matrix. मैंने बताया था, ठीक है, उसके अंदर होता है. It has got two parts. Krebs cycle has two parts. One, connecting link, and second is the Krebs cycle. Now, what is the difference between Krebs cycle and connecting link? Connecting link is just a, it is a connection between the glycolysis and Krebs cycle. दोनों के बीच का link है. Connecting link takes place in the outer chamber of mitochondria. If you remember, मैंने सिखाया था mitochondria. Whatever I teach you today, you have to practice daily. ये mitochondria है, इसका ये इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन बनाया मैंने. ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये बीच में जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलते हैं आउटर चेम्बर. समझ में आ रहा है? यहाँ पे इन द आउटर चेम्बर क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होता है. और बाकी जो क्रेब्स साइकिल राइट फ्रॉम ऑक्सैलोएसिटेट रिटर्निंग टू द ऑक्सैलोएसिटेट यहाँ पे ही होता है. ठीक है, तो ये खास बात. ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में होता क्या है? देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड, इसको दूसरा नाम है पायरुवेट. ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट. दिस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट में क्या होता है? इट इज ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड में होता है. एंड यहाँ पे क्या होता है? टोटल से अबाउट 8 NaDH2 तैयार होता है. ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा. 2 FADH2 तैयार होता है, 2 ATP बनता है. ठीक है, पर दिस इज ऑल फॉर्म्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इसको थोड़ा सा कॉपी करो तुम लोग, हाँ, और मुझे बताओ क्या है. Now, what is the connecting link? What actually happens? Connecting link में actually होता क्या है? What happens in connecting? The pyruvic acid or pyruvate, which is formed in glycolysis. You remember glycolysis? One molecule of glucose is broken into 2 molecules of pyruvic acid. और वो किधर होता है? Glycolysis में. तो वो pyruvate is take part in connecting in outer chamber में. यहाँ पे क्या होता है? It is broken down. This is the 3 carbon molecule. It is broken down to acetyl group या acetic acid. Acetyl. Okay, and during this process, one carbon dioxide is released and one NaH2 is formed. But how many pyruvic acid is formed in the glycolysis? One glucose into 2 pyruvate. So ये कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल. ये 2 मॉलिक्यूल, ये भी तो होगा.
these two acetylene. I hope you understand. This is called as connecting link. And connecting link, where it takes place? It takes place in the matrix. It takes place in the outer chamber of the mitochondria. Now, इसके बाद हमारा Trep ये acetyl glutamate, ठीक है? It react with the oxalo acid. Oxalo acid. ये oxalo acid किधर है? It is 4 carbon molecule, ठीक है? And this is 2 molecule ना? So दो molecule तो ये भी दो molecule ही रहेगा, ठीक है? So I could use only one molecule. Why? Because why only one molecule? Because let us study one molecule at a time. एक pyruvate में कितना है? टू का बात तो बताओ, वो ऐसा बात नहीं पता. ये जो oxalic acid है, it uses acid. Now इसके बीच में there is something called as acetyl coenzyme. right? Coenzyme यहाँ से निकल जाते coenzyme के वापस यहाँ पे. And so acetyl coenzyme will react with the oxalic acid and it forms. Now this is how many carbon? 4 carbon. This is how many carbon? 2 carbon. 4 plus 2 कितना होता है? कितना कार्बन हो गया? Now citrate it will lose water और बनेगा आइसो नहीं आइसोसेटेड, वो बनेगा सिस एक्वानेटेड. क्या बनेगा? सिस. अब सिस एक्वानेटेड क्या करेगा? वापस ले लेगा और बनेगा आइसोसेटेड. वापस रिपीट कर, ठीक है? इस सब 6 का रिपीट. ऑक्सैलिक एसिड कितना कार्बन है? 4 कार्बन. इट रिएक्ट विद एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन. 4 plus 2 कितना हो? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसका सिट्रेट एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके बनाते हैं सिर्फ एक्वानेटेड को वाटर के. तुमने सुना ना n ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, n प्रोपेन एंड आइसोप्रोपेन, just arrangement of. Yes sir, yes. That arrangement takes place. So that is what here. They are isomers. Okay, this is isomers. They are isomers. Now you had that in your 10th standard also. So isocitrate. So isocitrate or citrate are nothing but the isomers. So isomers of this H. Now what happens? It is going to form another molecule. Oxalo. क्या बनाएगा? ऑक्सैलोसक्सिनेट. ऑक्सैलोसक्सिनेट बनाने के पहले इट इज गोइंग टू फॉर्म NADH2. क्या बनाएगा? NADH. ऑक्सैलो जिधर भी आता है उसके पहले NADH2 बनता है, ये याद रखें. ठीक है? इट फॉर्म्स यहां पे बनाएगा. ठीक है? नाउ ऑक्सैलोसक्सिनेट is going to form another molecule. It will lose carbon dioxide. It will lose carbon. 6 कार्बन है, एक कार्बन लॉस हुआ. It will अल्फा कीटो ग्लूटारेट. ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि एक कार्बन लॉस तो 5 कार्बन. अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाएगा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम. ठीक है? सक्सिनाइल कोएंजाइम. सक्सिनाइल कोएंजाइम जब बनाएगा तो यहाँ पे वापस एक और कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो इसका कार्बन कितना आ जाएगा? 4 कार्बन. और यहाँ पे वापस NADH2 बनेगा. क्या बनेगा? NADH. NAD बनेगा. ये ट्रिक में याद करना. फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम बनाएगा सक्सिन. क्या बनेगा? आगे लिखिए सक्सिन. क्या बनेगा? सक्सिन. जब सक्सिनेट बनाएगा यहाँ पे GDP बनाते हैं और GDP बनाता है ADP को. अब ये सक्सिनेट बनेगा
अनदर मॉलिक्यूल जिसका नाम है फ्यूमेरेट। अब फ्यूमेरेट बनेगा अनदर मॉलिक्यूल मालेट, और मालेट बनाएगा ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, याद रखने का तरीका देखिए, सिट्रेट आइसोसिट्रेट के बीच में सिट्रेट के बीच में ऑक्सिलो सक्सिनेट और सक्सिनल कोएंजाइम के बीच में अल्फा कीटोग्लूटारेट, ऑक्सिलो सक्सिनल कोएंजाइम के बीच में अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनल कोएंजाइम तो सक्सिनेट बनेगा, फिर फ्यूमेरेट मालेट एफ तो यहाँ पे फ्यूमेरेट के बाद कौन चीज बनता है, इसको बोलते हैं FAD into FAD, FAD बनेगा। ठीक है, ऑक्सैलो है तो वहां पे क्या बनेगा NAD NADH, ठीक NADH। बहुत सारे एंजाइम्स भी है, मैं एंजाइम्स को सिखाने का ट्रिक बता दूंगा, याद करने का एंजाइम्स याद करने का ट्रिक बता दूंगा मैं तुम्हें। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, Krebs is a select step of aerobic. It takes place in the, its connecting link part takes place in the outer chamber, and its a major part takes reaction takes the matrix of the pyruvate, which is formed in the glycolysis in the outer chamber of the mitochondria. During this process, the NADH will form. Acid react with coenzyme into form acid. Acid coenzyme react with auxiliary acid to form. अभी देखो याद करने का तरीका, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के बीच में याद से सिट्रेट ऑक्सिलो सक्सिनेट और ऑक्सिलो सक्सिनेट के बीच में सक्सिनल कोएंजाइम के बाद सक्सिनेट बनेगा, फिर HF बैलेंस। अब आगे देखो मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखो, ऑक्सैलो है उसके पहले NADH2, ऑक्सैलो स्टार्टिंग में NADH, अब अल्फा कीटो के बाद एक NADH। और एक चीज याद रखो, अल्फा कीटो के पहले कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी और एक चीज याद रखना है, वाटर वाटर स्टार्टिंग में जाता है, स्टार्टिंग में इट इज देन सक्सिनल कोएंजाइम के बाद लगता है वाटर, यहाँ पे फिर मैलेट को तीन जगह पे वाटर, क्या तीन प्लेस में वाटर ले, समझ में, इट नीड्स वाटर, इट टेक्स वाटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन विद दिस पार्ट? एंजाइम्स देख लो, सिट्रेट आइसोसिट्रेट सिर्फ एकोनेटेड के बीच में, इधर दोनों में एकोनेटेज एंजाइम और आयन और Mn+, फिर इसका हाइड्रोजन लॉस हुआ ना, इसमें आइसोसिट्रेट ये ऑक्सिलो सक्सिनेट कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, तो नाम देखो ऑक्सिलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट है, हाइड्रोजन लॉस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डीकार्बोक्सिलेज। ये सक्सिनेट है, यहाँ पे इसको इधर क्यों काइनेज याद रखना, एक एंजाइम है क्यों काइनेज, सक्सिनेट फ्यूमेरेज बनाता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे ये यहाँ क्या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, तो फ्यूमेरेज के बाद आएगा फ्यूमेरेज, पायलेट एंजाइम का नाम कुछ